السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمس اکیڈمی میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج 7 فروری 2026 کو سی ٹیٹ کا پیپر ہوا۔ اس میں اردو پیڈاگوجی کے جو سوال پوچھے گئے ہیں ان کا آنسر کی لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، تو دیکھتے ہیں کس طرح کے سوالات پوچھے گئے تھے۔ سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں اردو پیڈاگوجی سے، اور یہ سوال ان کا ہے جس نے پیپر پیڈاگوجی لینگویج 1 میں جنہوں نے اردو کا آپشن چنا تھا۔ پہلا سوال کیا تھا 91 میں دیکھتے ہیں، استاد بچوں کو 5 تصویریں دکھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ان تصاویر کی بنیاد پر کوئی کہانی لکھیں۔ یعنی استاد جو بچوں کو تصویر دکھاتا ہے اور تصویر دکھانے کے بعد کیا کہتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کوئی کہانی لکھیں۔ تو اس طرح کی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیقی تحریر کہتے ہیں۔ ان کا رائٹ آپشن جو ہو جائے گا آپشن نمبر 1۔ آگے دیکھتے ہیں 92 کا ہے، مندرجہ ذیل میں سے کارکردگی پر مبنی جائزے کا خصوصیات کون سی ہے؟ کارکردگی پر مبنی جائزے کی خصوصیات کو بتانا ہے۔ تو ان کا جو صحیح جواب کیا ہو جائے گا دیکھ لیتے ہیں۔ سیاق شدہ ترسیلی کام، کثیر الانتخاب سوالات، غیر تعاملی کارکردگی، غیر سیاق شدہ ٹیسٹ۔ تو ان کا جو صحیح جواب جو ہو جائے گا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا، سیاق شدہ ترسیلی کام۔ آگے دیکھتے ہیں 93 کا، قرأت کے بارے میں مندرجہ ذیل میں کون سا بیان درست ہے؟ آپشن نمبر اے ہے، قرأت صرف حرف اور صوت کے رشتے کو سمجھنا اور الفاظ کے درست ادائیگی کا نام ہے۔ جو بات یہ کیا بالکل غلط ہے۔ جب ہم قرأت کرتے ہیں تو صرف کیا ہے، حرف اور صوت کے رشتے کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، قرأت علامات کو ڈیکوڈ کر کے معنی تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یعنی بھی تو بالکل صحیح، جب قرأت کی بات جب ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں قرأت کرتے ہیں تو کیا ڈیکوڈ کر کے اس کے معنی تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو آپشن نمبر کیا ہے 93 کا بی درست ہے، لیکن اے غلط ہو جائے گا۔ یہ ان کا صحیح جواب ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں 94 میں دیکھتے ہیں، ایک استادنی کو اپنے طلباء کے سننے کی مہارت کا جائزہ لینا ہے۔ سننے کے جائزے کے طور پر مندرجہ ذیل سرگرمیوں میں سے وہ کون سی سرگرمی منتخب کر سکتی ہے؟ اب سننے کی مہارت کی بات ہو رہی ہے، یعنی سننا، لسننگ کی پارٹ ہے سننا۔ تو ایک ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ استادنی انہیں ذخیرہ الفاظ پر مبنی کام دیتے ہیں بچوں کو۔ دیکھا جائے بچوں کو ان کی زبانی پیشکش کے اعتبار سے درجہ بندی کرنا۔ استادنی بچوں کو ایک کہانی سناتی ہے جس کے بعد وہ فہم پر مبنی سوالات پوچھتی ہے۔ یہ اچھا ہے آپشن ہے، کیونکہ کہانی سننے کی بات ہے۔ جب کہانی سننے کی مہارت پہ غور کرنا ہے، یعنی سننے کی مہارت کا جائزہ لینا ہے، جس میں کیا ہے استادنی بچوں کو ایک کہانی سناتی ہے جس کے بعد وہ فہم پر مبنی سوالات پوچھتی ہے۔ آگے بھی آپشن دیکھ لیتے ہیں، استادنی بچوں کو کہانی پڑھنے کے لیے کہتی ہے اور اس کے بعد ان سے فہم پڑھنے کے لیے کہتی ہے۔ تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ سننا ہے۔ آپشن نمبر 3 ان کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، خالی جگہ ہے کا تعلق زبان کے معنی کے پہلو سے۔ آپشن اے صوتیات، آپشن 2 میں ہے، آپشن اے میں صرفیات، آپشن 2 میں ہے صوتیات، آپشن 3 میں ہے معنیات، آپشن 4 میں نحویات۔ تو ان کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 معنیات کا تعلق زبان کے معنی کے پہلو سے ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سا زبان سیکھنے کے اصول نہیں ہے؟ زبان سیکھنے کے اصول میں کیا چیزیں شامل نہیں ہے؟ یعنی نگیٹو چیز کو ہم کو تلاش کرنا ہے۔ زبان قواعد کی ساختیوں اصولوں کو یاد کرنے سے سیکھی جاتی ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ زبان سیکھنے میں مہارت اور علم دونوں بروئے کار ہوتے ہیں، یہ تو صحیح بات ہے۔ آموزگار سیکھنے کے اپنے ترجیحی نقطہ نظر میں مختلف ہو سکتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ زبان ایک ترسیلی ذریعہ ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے، زبان کیا ایک ترسیلی ذریعہ ہے۔ تو ان کا جواب کیا نکل کے آ جائے گا ہمارا آپشن نمبر 1، کیونکہ مجھے نگیٹو تلاش کرنا تھا۔ 94 کا 96 کا 1۔ اگلا دیکھتے ہیں 97 نمبر میں، 6ٹھی کلاس کے ایک استاد نے بلیک بورڈ کے
ब्लैक बोर्ड के बीचों बीच एक लफ्ज़ लिखा और आमोज़गारों से कहा कि इस मरकज़ी लफ्ज़ से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम अल्फाज पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें जो उनके जहन में आ सकते हैं। इस सरगर्मी का अहम मकसद क्या है? यानी टीचर जो है, उस्ताद जो है, ब्लैक बोर्ड के बीचों बीच कुछ अल्फाज लिख देता है और बच्चों से कहता है कि इसी लफ्ज़ के इर्द गिर्द कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, यानी कुछ अल्फाज बताएं। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? देखते हैं, पढ़ने की महारत में इजाफा इससे नहीं होता है, क्योंकि एक लफ्ज़ लिखी गई है और पूछा गया है कि इन लफ्ज़ के हवाले से और अल्फाज को जमा करें। तहरीरी भी नहीं हो सकता है। आमोज़गारों के ज़ख़ीरा अल्फाज में बेहतरी लाना, ये सही जवाब हो जाएगा। आमोज़गारों के ज़ख़ीरा अल्फाज में बेहतरी लाना, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामर समझाना, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, मुंदरजा झेल बयानात पढ़ें। दावा और दलील है। दावा क्या है? ऑप्शन ए, इब्तदाई सालों में ज़ुबान के सीखने में ताख़ीर करने से बच्चों के लिए नई ज़ुबानें सीखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इब्तदाई दौर के बच्चे में अगर ताख़ीर की जाए तो ज़ुबान सीखने में मुश्किल हो सकता है। दलील क्या दे रहे हैं? देखते हैं दलील क्या, इस बात की दलील क्या है। बच्चे के इब्तदाई साल ज़ुबान सीखने के लिए ख़ासे हसास मुद्दत होते हैं। सही बात है, दलील भी बिल्कुल सही है। जब बच्चों में क्या है कि जब इब्तदाई बच्चे होते हैं तो ज़ुबान जल्दी सीख जाते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं वो ज़ुबान को जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वो सलाहियत मौजूद होती है, छोटे बच्चों के अंदर में। तो दावा और दलील दोनों सही है, और क्या है, दलील दावे की दुरुस्त वजाहत भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 इनका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 99, कसीर लिसानियात के हवाले से कौमी दरसियात का खाका बराए असासी मरहला का एक कलीदी उसूल है। क्या है? 2020 का कलीदी उसूल क्या, देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, घर की ज़ुबान से छुटकारा पाने में बच्चों की लाजमन मदद की जानी चाहिए और स्कूल की तवज्जो लाजमन स्कूल की ज़बान सिखाने की तरफ होनी चाहिए। ये तो नेगेटिव बात ये नहीं होगी, क्योंकि कौमी दरसियाती खाका बराए असासी मरहला 2022 की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव बात है। मुअस्सर निसाबी मुंतकली कैरिकुलम ट्रांजैक्शन में क्लास रूम की कसीर लिसानी नौयत रुकावट का बास बनती है, ये भी एक नेगेटिव बात है, ये भी नहीं आएगा। इब्तदाई सालों में बच्चे मुतअद्दिद ज़ुबानें सीखने में शदबद पैदा नहीं कर पाते हैं, ये भी गलत बात है। आगे देखते हैं, कसीर लिसानियत वकूफ़ी और समाजी सकाफ़ती फ़वाइद दोनों होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका जवाब जो है 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 नंबर देखते हैं, बाज़ ज़ुबान बोलने वाले कम्युनिटी में ज़ुबान की 2 शक्लें एक साथ मौजूद हैं और हर शक्ल एक इम्तियाजी समाजी तफ़ाउल रखती है। इस सूरत हाल को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है, कोड मिसिंग कहा जाता है, ऑप्शन 2 में था। ऑप्शन 3 है रजिस्टर कहा जाता है, ऑप्शन 4 है डिग्लोसिया कहा जाता है। क्या इनका जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं 101, बच्चों जोड़ों में काम करते हैं। एक मतन को 2 में तकसीम किया गया है। एक बच्चा अपने मतन को दूसरे जोड़ीदार के लिए पढ़ता है, जबकि दूसरा जोड़ीदार इसे लिखता है, यानी एक जोड़ीदार पढ़ता है, दूसरा उनको लिखता है। दोनों मिलकर मुकम्मल मतन पर काम करते हैं। इस सरगर्मी को क्या कहा जाता है? इस सरगर्मी को क्या कहा जाता है? कहानी सुनाना नहीं होने पाएगा, लफ्ज़ों का जाल ये भी नहीं होना पाएगा, जुज़वी इमला ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2 सही जवाब हो जाएगा, रवा इमला। आगे देखते हैं, ज़ुबान की क्लास में अदबी मतून के मुताले के बारे में मुंदरजा झेल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? यानी नेगेटिव बातों का हमको तलाश करना, कौन सी बात दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? अदबी मतून तहसीन और लुत्फ़ अंदोज़ी वाले मतून होते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। अदबी मतून को ग्रामर सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जब
ادبی ज़ुबान की बात हो रही है तो ग्रामर तो ये नहीं, नेगेटिव एक है, फिर भी देख लेते हैं। अदबी मतून ज़ुबान सीखने के लिए सकाफ़ती इनपुट का काम देते हैं, ये सही बात है। अदबी मतून तनक़ीदी तर्ज फ़िक्र और गौर व तरतीब की सलाहियत पैदा करता है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये गलत बात है, ये नहीं होनी, इनका जवाब 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। 102 के बाद आपका 103। 103 छठी क्लास के नवी को मतन पढ़ने में दुश्वारी होती है। उस्ताद ने उसे पढ़ने के लिए वो सादा मतन देती है और इसके लिए मुश्तरका रीडिंग सेशन रखती है। उस्ताद के ज़रिए फराहम की गई मदद को क्या कहते हैं, है ना। छठी क्लास की नवीन को मतन पढ़ने में दुश्वारी होती है, उस्तादनी इसे पढ़ने के लिए सादा मतन देती है, वो इसके लिए मुश्तरका रीडिंग सेशन रखती है, उस्ताद के ज़रिए फराहम की गई मदद को क्या कहते हैं। तो जब हम वाइगॉट्से की थ्योरी को पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है स्कैफोल्डिंग इसको कहा जाता है, इब्तदाई ढांचे की तैयारी, जिसमें स्कैफोल्डर का काम ही होता है मदद करना बच्चों को। तो जेटपीडी से सवाल पूछा गया था, वाइगॉट्से की थ्योरी से डायरेक्ट सवाल था। ज़ुबान की तदरीस व आमोदिश का वो कौन सा नुक्ता नज़र मानता है कि ज़ुबान एक आदत है। तो इनका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, मावन समी लिसानियात, ऑप्शन नंबर 2 इनका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 105 में। एक बच्चा गैर दरसी इक़्तिबास पढ़ता है जिसके लिए उससे तवक्को की जाती है कि वो इसके बाद सवालात का जवाब दे सके। इस किस्म की क़िराअत को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक बच्चा जो गैर दरसी किताब को पढ़ता है लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि बच्चा जो है इनको कुछ जवाब दे सकेंगे। तौसीई क़िराअत ऑप्शन नंबर 1 में था। ऑप्शन नंबर 2 में क्या, बगौर जायज़ा। ऑप्शन नंबर 2 जो इनका सही जवाब हो जाएगा, बगौर जायज़ा इनका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। इक़्तिबास दिए गए हैं, बहुत ही आसान से इक़्तिबास आया, फिर भी एक दफ़ा पढ़ते हैं ताकि नीचे दिए गई इबारत को पढ़ें और दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। ठीक है, देखते हैं। नसीबा दाई अपने घर में अकेली थी, एक बूढ़ी मुलाजिमा उनके साथ रहती थी, उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी, उनका बेटा शादाब और उनकी फैमिली अमेरिका चले गए थे। एक तो वो दम्मे की मरीज थी, इस पर अय्याज की शरारतें अलग। एक दिन हस्म आदत अय्याज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका और शोर मचाता रहा, लेकिन ना तो दादी डंडा लेकर आए ना बूढ़ी मुलाजिमा ने उन्हें टोका। फिर अय्याज ने नसीबा दादी के पेट के सारे कच्चे अमरूद तोड़ डाले। पहले तो अय्याज को हैरत हुई, मगर वो अमरूद खाने में मसरूफ़ हो गया। अचानक इसकी नज़रें सदर दरवाजे पर पड़े, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जूं के त्यों रखे हुए थे। अब इनके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर 106 का सवाल। ये नज़र की जमा क्या है, तो नज़र की जमा आसान सा था, नज़ारों हो जाएगा, नज़र की जमा नज़ारों। आगे देखते हैं। दोस्त का मुतज़ाद यानी दोस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, दुश्मन। बहुत ही आसान था, ये दोनों सवाल सा था। नसीबा दादी के साथ कौन रहता था, तो बूढ़ी मुलाजिमा। कौन रहता था, बूढ़ी मुलाजिमा। आप इक़्तिबास को पढ़ेंगे तो आसानी के साथ में देख सकते हैं, बूढ़ी मुलाजिमा है ना, बूढ़ी मुलाजिमा उनके साथ रहती थी। आगे देखते हैं। किसके इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी, किसके इंतकाल हुए मुद्दत, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। इक़्तिबास को आप गौर से पढ़ें, अंदाज़ा मिल जाएगा। नसीबा दादी का बेटा और उसकी फैमिली कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। अगला देखते हैं। नसीबा दादी को क्या मर्ज था, दम्मे का मर्ज था। बहुत ही आसान पैराग्राफ आया था। अय्याज किसके साथ नसीबा दादी के छत पे जा धमका था, अपने दोस्त इरफान के साथ, अपने दोस्त इरफान के साथ। अगला देखते हैं। अय्याज ने नसीबा दादी के पेड़ के क्या तोड़ डाले थे, कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले थे। अय्याज की नज़र
अमरूद खाते खाते किस जगह पे पड़ी थी? सदर दरवाजे पे पड़ी थी। ये जवाब सही हो जाएगा। अब फिर देखिए इक़्तिबास है ना, एक इक़्तिबास पढ़ते हैं। ठहनी में किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पे आई है, उड़ने जुगने में दिन गुजरा, पहुंचू किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आह व ज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अब देखिए शजर की जमा क्या है? अशजार होते हैं, शजर की जमा अशजार। अगला देखते हैं, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। अभी हमने पढ़ा हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। बुलबुल कहाँ उदास बैठा था? बुलबुल कहाँ उदास बैठा था? तो कहाँ था? पेड़। कहाँ था बुलबुल उदास बैठा? शजर की टहनी पे। अगला देखते हैं, बुलबुल को आशिया तक पहुंचने में क्यों परेशानी हो रही थी? क्योंकि हर चीज पे छा गया अंधेरा। 118 का 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुलबुल की आह व ज़ारी सुनकर कौन बोला? जुगनू बोला। ठीक है। अगला देखते हैं, जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा? जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा? राह में रोशनी करने के लिए कहा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। इस तरीके से आपका टोटल 30 सवालात हल हो चुके हैं। लैंग्वेज जिसने 2 रखा था, लैंग्वेज जिसने 1 रखा था उर्दू में, उनके लिए आज ही का पेपर हुआ था। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।